Hello students, I am Samir Kumar Panda. I am your biology mentor. Today we'll discuss a very important concept in biological classification system, that is five kingdom classification system. We'll discuss what are those criteria that were taken into account to classify the organism. That means Whittaker uses those criteria. What are those criteria? What are those parameters that Whittaker uses those parameters to classify the organisms into different categories and groups? We'll also discuss about what are the advantages and disadvantages of these classifications. बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन की, तो ये क्लासिफिकेशन आज का नहीं है. बहुत साइंटिस्ट ने बहुत अटेम्प्ट्स किए हैं इस क्लासिफिकेशन करने के लिए. पहले टू क्लासिफिकेशन सिस्टम आया जो अरिस्टोटल ने दिया, पहला साइंटिफिक बेस का क्लासिफिकेशन. उसके बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव और इवन सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया गया, जिसमें हम लोग मोनेरा को डिवाइड करके आर्किबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में डिवाइड किया. मोनेरा को सिक्स किंगडम और थ्री डोमेन क्लासिफिकेशंस. बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि आज भी हम लोग फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को मानते हैं, उसको यूज करते हैं, उसी को फॉलो करते हैं. ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों, इसको क्यों इतना मानते हैं, क्यों इतना ये एक्यूरेट इसको माना जाता है? क्योंकि ये सबसे नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है. बिकॉज इन दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑलमोस्ट ऑल द पैरामीटर्स आर यूज्ड or taken into account to classify the organisms. Without wasting much time, let's start our lecture. So five kingdom classification system. So five kingdom classification system, it is given by R.H. Whittaker in the year 1969. In the year 1969. Now we'll write what are those criteria, what are those main criteria or parameters used by Whittaker to classify the organisms, basically in case of this five kingdom classification system. मतलब इसका मतलब ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि Whittaker ने कौन कौन से क्राइटेरिया को, बेसिकली कौन कौन से क्राइटेरिया को यूज किए थे, और उसको यूज करने के बाद उन्होंने इस क्लासिफिकेशन को हमारे सामने रखा और दुनिया को इस क्लासिफिकेशन के बारे में दिया. तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग नीचे से जाएंगे, लोअर से जाएंगे हायर की ओर, और लोअर से हम लोग बात करेंगे. सबसे पहला जो क्राइटेरिया की बात करेंगे वो क्राइटेरिया है बेटा कॉम्प्लेक्सिटी इन द सेल. जब हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी इन द सेल, इट मीन्स what is the complexity in the cell? That means whether this cell is unicellular or multicellular, whether this cell is unicellular or multicellular. That means here we can write unicellularity or unicellular and multicellular. What? And multicellular. This is the complexity in the cell. And next to this, complexity in the organism. Complexity in the organism. It means whether the organism is prokaryotic, or it is eukaryotic. And third one is very important, the mode of nutrition. Third one I am writing here. Third one, the mode of nutrition. These are the basic criteria or parameters used by Whittaker. ये बेसिक क्राइटेरिया था, बेसिक पैरामीटर था, Whittaker के द्वारा ये यूज किया गया था. मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग जब देखेंगे, विल स्टडी हियर इन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन. देन फर्स्ट इज द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. सेकंड इज द सप्रोफाइटिक और सप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. And third is the heterotropic nutrition. These are the three basic criteria or three basic parameters used by Whittaker. First one is complexity in the cell, second one is complexity in the organism, and third one is in the nutrition level. Autotroph. What are the autotrophs? Green plants, green algae, etc. and some photosynthetic bacteria.
saprophytic or saprotropic nutrition it is actually belongs to fungi. Saprophytic nutrition or saprotropic nutrition, and heterotropics the animals. Heterotropics is the animal. Now we will try to understand actually Whitaker classify the all living organism into 5 different categories. Whitaker classify, just I am rubbing it because we don't have so much time. Whitaker classify the organisms into 5 different groups or categories. That is, first one is Monera, second one is Protista, third one is fungi, fourth one is Plantae, and next is the Animalia. He classified the organism into these 5 categories: Monera, Protista, fungi, Plantae, and Animalia. Okay. Now we'll try to understand a chart given in the NCERT book. We try to understand what are those parameters used by the Whitaker system of classification. That means Whitaker uses those parameters or taken into account to classify the organism. कौन कौन से, तो कैसे इसको हम समझ सकते हैं. ये 5 कैटेगरी में, ग्रुप में उन्होंने इसको बांट दिया. एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया है, जिस चार्ट की मदद से हम ये समझ सकते हैं कि भाई कैसे क्लासिफिकेशन किया गया और क्या किया गया क्लासिफिकेशन. जस्ट एक्चुअली गिविंग द M for Monera, then P for Protista, then F for fungi, then P for Plantae, Protista, and this is Animalia. And here is the list of the criteria. First criteria, second criteria, third criteria, fourth criteria, and the last one criteria. First criteria used by the cell type. What is the cell type of Monera? What is the cell type of Monera? That is, Monera is unicellular in nature. Protista is also unicellular in nature. Fungi is multicellular except yeast. अगर हम ईस्ट को छोड़ दें, जिसको हम लोग Saccharomyces cerevisiae के नाम से जानते हैं, तो उसको अगर छोड़ दिया जाए तो सारे फंजाई क्या है ना, मल्टीसेलुलर. ये प्लांटे भी मल्टीसेलुलर है और एनिमालिया भी मल्टीसेलुलर. तो पहला क्राइटेरिया जो था सेल टाइप, उसका हमने कंप्लीट किया. मोनेरा यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर है, फंजाई मल्टीसेलुलर है लेकिन ईस्ट को छोड़ करके, प्लांटे मल्टीसेलुलर और एनिमालिया मल्टीसेलुलर है. दूसरा जो क्राइटेरिया है, सेकंड क्राइटेरिया, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल. मोनेरा में सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, सेल वॉल प्रेजेंट रहता है. प्रोटिस्टा में प्रेजेंट रहता है बट इन सम, मतलब इसको हम समझ सकते हैं कि जो प्रोटिस्टा है इसमें कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा और कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहेगा. फंजाई में भी सेल वॉल रहता है प्रेजेंट, फंजाई में भी सेल वॉल प्रेजेंट हम दिखाएंगे. प्लांटे में भी सेल वॉल प्रेजेंट है लेकिन एनिमलिया में सेल वॉल एब्सेंट, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाया जाता है. जो मोनेरा में हमने सेल वॉल देखा, इसके एक्चुअली म्यूरिन या फिर पेप्टिडोग्लाइकन से बना होगा. पेप्टिडोग्लाइकन कार्बोहाइड्रेट प्लस एमिनो एसिड का चेन होगा. और जो फंजाई में कहते हैं ये काइटिन से बना होगा. काइटिन, फंजाई का जो सेल वॉल है ये काइटिन से बना होगा. इतनी डिफरेंस है. थर्ड नंबर हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. क्या देखेंगे बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कि नहीं. मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस ही नहीं है, तो ये एब्सेंट माना जाएगा. प्रोटिस्टा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, फंजाई में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इन सारे में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. केवल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में बैक्टीरिया के ग्रुप में नहीं पाया जाता. नेक्स्ट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. क्या है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. तो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे, ये मोनेरा है. ये मोनेरा क्या है? मोनेरा क्या है ना, ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इसका ना. मोनेरा का क्या है? सेलुलर टाइप है. प्रोटिस्टा का भी क्या है? सेलुलर टाइप है. फंजाई का क्या है? फंजाई का क्या है? इसमें फंजाई में चूंकि मल्टी सेलुलर है तो टिश्यू पाया जाता है, तो लूज टिश्यू पाया जाता है बेटा. लूज ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू का रहता है. प्लांटे में क्या ना, टिश्यू
और ऑर्गन पाए जाते हैं, लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं पाया जाता। और एनिमल्स में ये टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम तीनों पाए जाते हैं। टिश्यू भी पाया जाता है, ऑर्गन भी पाया जाता है और ऑर्गन सिस्टम, ये तीनों पाए जाते हैं। और लास्ट जो है इसको मानते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या मानते हैं? मोड ऑफ, कौन कैसे न्यूट्रिशन लेता है। सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस मोनेरा। सो व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द मोनेरा? मोनेरा में क्या होते हैं ना, ऑटोट्रोपिक मोनेरा भी है, पैरासाइटिक मोनेरा भी है, पैरासाइटिक बैक्टीरिया भी है, ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया भी है, बहुत प्रकार के यहां मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा में, ये प्रोटिस्टा जो है ये डुअल बिहेवियर करता है। क्या बेटा? डुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है ना। कुछ जैसे मान लो हम लोग यूग्लिना की बात करें, यूग्लिना एक प्रोटिस्टा है, तो यूग्लिना की बात करें तो यूग्लिना डुअल बिहेवियर शो करता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के मामले में। मतलब वो ऑटोट्रोपिक भी है और हेटेरोट्रोपिक भी है। फंजाई की अगर बात करें तो ये इसके पास सप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना भोजन प्राप्त करता है, जो न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। प्लांटे में अगर देखे जाए तो प्लांटे में क्या है ना, ये ऑटोट्रोपिक फोटोसिंथेटिक है। और एनिमल्स क्या है ना भाई, एनिमल्स क्या है, ये कंप्लीटली हेटेरोट्रोपिक है। क्या है? कंप्लीटली हेटेरोट्रोपिक है। और ये हेटेरोट्रोपिक मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशंस इसमें पाए जाते हैं, होलोजिक न्यूट्रिशंस। प्रोटिस्टा में भी कुछ कुछ में, जैसे एमोबिया वगैरह में, ये होलोजिक न्यूट्रिशंस पाया जाता है। क्लियर है बात? हमने क्या किया ना, इस चार्ट के माध्यम से 5 लिया, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है और मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका क्या है। इस आधार पर मतलब ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन व्हिटकर ने दिया है, व्हिटकर ने इन सारे चीजों को पैरामीटर के तौर पर, क्राइटेरिया के तौर पर यूज किया है और इनको यूज करके उन्होंने ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है। अब कर दूं, अभी हम लोग तुरंत बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, तो ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इससे हम लोगों को क्या पता चला कि ये सबसे बेहतरीन क्लासिफिकेशन सिस्टम था। हालांकि क्लासिफिकेशन के मामले में अगर बात किया जाए, अगर हम क्लासिफिकेशन के मामले में बात करेंगे तो जैसे जैसे समय बीता हमारी क्लासिफिकेशन के मामले में अंडरस्टैंडिंग बढ़ी और धीरे धीरे हम लोगों ने समझा क्लासिफिकेशन को, और अंत में इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया, जिन्होंने सबसे ज्यादा इसको सबसे नेचुरल मानते हैं इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा इन्होंने क्या किया ना, पैरामीटर्स को यूज किया क्लासिफाई करने के लिए, ताकि हर एक ऑर्गेनिज्म को उसके अपने कैटेगरी के हिसाब से हम लोग क्लासिफाई कर पाए। अब हर एक क्लासिफिकेशन में, जैसे मान लो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में कुछ डिमेरिट थे, 3 किंगडम में डिमेरिट थे, 4 किंगडम में डिमेरिट थे, सब में डिमेरिट्स होते हैं और सब में मेरिट्स होते हैं। तो अब हम बात करेंगे, नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। पहले हम बात करेंगे मेरिट्स या एडवांटेजेस की। किसकी बात करेंगे? एडवांटेजेस की बात करेंगे। व्हाट आर दोज एडवांटेजेस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्या एडवांटेजेस थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के? व्हाट आर दोज एडवांटेजेस? सबसे पहला जो एडवांटेजेस था यह था कि इट इज ए बेटर एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसको सबसे पूरी दुनिया के लोग इसको माना, पूरी दुनिया में इसको माना गया कि भाई ये सबसे बेटर है, और ये आज भी इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, तो इसको माना गया कि इट इज एन बेटर एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन। ये सबसे बेटर और नेचुरल क्लासिफिकेशन था। ऑर्गेनिज्म दूसरा है, ये इसका एडवांटेजेस है कि ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर सेपरेटली। मतलब इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि ऑर्गेनिज्म जो है इनको यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में हम लोगों ने क्या रखा, सेपरेटली रखा, सेपरेट उनका किंगडम दिया, यूनिसेलुलर का अलग किंगडम, मल्टीसेलुलर का अलग किंगडम। थर्ड में हम लोग जब बात करेंगे फंजाई, बात करेंगे किसका ना, सबसे बड़ा एडवांटेज जो इसका है फंजाई के बारे में है, रिलेटेड है। जैसे फंजाई कैप्टिन है सेपरेट किंगडम, इसको इसीलिए इतना ज्यादा जोर हम लोग दे रहे हैं क्योंकि फंजाई को सेपरेट किंगडम में रखना है, बाकी सबको भी रखे हैं, लेकिन क्योंकि फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो थोड़ा बहुत अलग है। अलग का मतलब है कि वो सप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेता है, तो इसीलिए फंजाई को हम लोगों ने अलग एक कैटेगरी में रखा। और चौथा है इसका एडवांटेजेस, चौथा एडवांटेजेस है कि प्रोकारियोटिक, कौन प्रोकारियोट है और कौन प्रोकारियोट और यूकारियोटिक, प्रोकारियोट्स और यूकारियोट्स के बारे में भी हम लोगों ने क्लियरली डिस्टिंक्ट कर पाए, क्लियरली क्लासिफाई कर पाए।
यूकैरियोटिक, क्लियरली सेपरेटेड और क्लासिफाइड। तो ये चार चीजें हम लोग एडवांटेज में पढ़ेंगे। लाभ क्या था ना, ये एक बेटर और नेचुरल क्लासिफिकेशन है। ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में सेपरेटली क्लासिफाई किया गया है। फंजाई को हमने सेपरेट किंगडम में रखा है और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को हमने क्लियरली सेपरेट कर दिया। ये इसके एडवांटेजेस थे, मतलब इसके मेरिट्स हम बोल सकते हैं। जस्ट आई विल रब इट नाउ, मैं इसको साफ कर लूं, फिर हम लोग डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। एंड थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो बन रहा है और समय की कमी है, इसलिए बारे में बात करेंगे। और डिमेरिट्स या फिर डिमेरिट्स आप बोल सकते हैं, डिमेरिट्स के बारे में हम लोगों ने बात करना है। अब बात करेंगे डिसएडवांटेजेस के बारे में। पहले क्या बात करेंगे, डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो सबसे पहला डिसएडवांटेज जो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में है वो ये है, क्योंकि वायरस कैनॉट इंक्लूडेड इन एनी किंगडम। वायरस को कोई किंगडम नहीं दिया गया है, क्योंकि ये क्या है ना, कनेक्टिंग लिंक। इट इज एन कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। मतलब ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या है ना, कनेक्टिंग लिंक है। इट इज एन कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। नाउ विल टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले बात करेंगे वायरस के बारे में, क्योंकि वायरस को कोई किंगडम नहीं दिया गया। वायरस कनेक्ट इंक्लूडेड इन एनी किंगडम, क्योंकि ये वायरस क्या है, इट इज एन कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड वायरस। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। ये भी डुअल प्रोसेस शो करता है। जैसे मान लो होस्ट के बाहर अगर ये नॉन लिविंग के जैसा बिहेव करता है, होस्ट के अंदर चला जाता है तो मल्टीप्लाई करना चालू कर देता है। तो इसीलिए इसको हम मानते हैं, ना इसको लिविंग मानते हैं ना नॉन लिविंग। इसीलिए इसको एक किंगडम देना चाहिए था, क्योंकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इसको कोई किंगडम नहीं दिया गया। दूसरा अगर बात करें एल्गी के बारे में बात करेंगे। एल्गी जो यूनिसेलुलर एल्गी हैं उनको किस में रखा गया ना, प्रोटिस्टा में रखा गया। यूनिसेलुलर एल्गी को किस में रखा गया, प्रोटिस्टा में रखा गया। और जो मल्टीसेलुलर एल्गी हैं उनको हमने कहां रखा ना, प्लांटे में रखा। लेकिन होना क्या चाहिए था, दोनों को बोथ इंक्लूडेड इन द सेम किंगडम, दोनों को एक ही किंगडम में रखना चाहिए था। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने क्या किया, 5 किंगडम में एल्गी जो यूनिसेलुलर एल्गी है उनको कहां रख दिया, प्रोटिस्टा में। और जो मल्टीसेलुलर एल्गी उनको कहां रख दिया, प्लांट में। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था और ये बहुत बड़ा मिस्टेक था। थर्ड नंबर जो है प्रोटिस्टा। हम अगर प्रोटिस्टा की बात करें तो ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। कुछ प्रोटिस्टा में सेल वॉल पाया जाता है, कुछ प्रोटिस्टा में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ये डुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशनल बिहेवियर करते हैं, न्यूट्रिशन के मामले में डुअल मोड शो करते हैं। तो प्रोटिस्टा में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। प्रोटिस्टा में इतना ज्यादा डाइवर्सिटी है कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो सबको एक किंगडम में रख दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये 3 बेसिक जो है, ये 3 बेसिक डिसएडवांटेजेस हैं। और भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन हम अगर बेसिक माने तो 3 डिसएडवांटेजेस मानेंगे। पहला क्या ना, वायरस को कोई चीज नहीं दिया गया, कोई किंगडम नहीं दिया गया। दूसरा ये कि एल्गी, यूनिसेलुलर एल्गी और मल्टीसेलुलर एल्गी को हमने अलग अलग रखा। लेकिन एल्गी जब बोल रहे हैं तो एल्गी एक ही किंगडम में होना चाहिए, क्योंकि प्रोटिस्टा में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। प्रोटिस्टा में क्या है ना, बहुत ज्यादा डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है प्रोटिस्टा। तो सबको एक किंगडम हमने रख दिया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनके डाइवर्सिटी के हिसाब से उनको अलग किंगडम और देना चाहिए था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। तो ये है डिसएडवांटेजेस। आई होप most of all you understand the concept and mechanism। और भी हम लोग आगे वीडियो जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।